Hello guys, you are most welcome in economic session. Hope you are enjoying your learning through MCQ series. आज MCQ series के थर्ड एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल इनकम. Okay, so without delay we'll start it. The first question, out of the following which aggregate represents national income? There are four options given here: NNP at market price, GNP at factor cost, NNP at factor cost, GNP at market price. Guys, you have studied the national income chapter, then the different concepts of national income you must be knowing. Okay, so national income is considered what? नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट वेज, बट व्हाट एग्रीगेट इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम? दैट इज NNP at factor cost. Net national product at factor cost is considered national income in an economy. Okay, so right option is C. Net sum of all the incomes earned by all the factors of production for their contribution in the total output. Next question, which of the following denotes NNP? Which of the following denotes NNP? Four options: GDP minus depreciation, GDP plus depreciation, NNP minus depreciation, GNP minus depreciation. How to calculate net national product? What is the formula for it, guys? The fourth option, GNP minus depreciation. जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ NNP. So right option is D. Next question, final goods refer to those goods which are used either for dash or for dash. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं. फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर. फाइनल गुड्स को कैसे हम यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन विल सी हियर, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. Yes, this is the right answer. Final goods are used as consumption goods or investment goods. Next question, cotton yarns purchased by handloom worker is. कॉटन यार्न, कॉटन का जो धागा होता है वो हैंडलूम वर्कर्स परचेज करते हैं. सो दिस कॉटन यार्न इज कंसिडर्ड एज व्हाट टाइप ऑफ गुड्स? ऑप्शंस आर an intermediate good, a consumer good, a capital good, none of this. ये है intermediate good. Okay, इस गुड्स को यूज करके वो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, मीन्स क्लोथ बनाते हैं. तो कॉटन यार्न क्या हुआ? यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड हुआ फॉर हैंडलूम वर्कर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं: रेंट, वेज, प्रॉफिट, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड. वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. फैक्टर इनकम कौन सा नहीं है? रेंट है, यस, लैंड को रेंट मिलता है तो रेंट है. वेज फॉर लेबर, so this is also the factor income. Profit for entrepreneur, so this is also factor income. Gifts from abroad, this is not the factor income, this is transfer payment. So fourth option is the correct one. Next question, depreciation means. depreciation का मतलब क्या होता है? Four options given: destruction of a plant in a fire accident, second, loss of fixed assets over time due to wear and tear, third, loss of fixed assets in an earthquake, fourth, closure of the plant due to lockout. So what will be the correct answer? Yes, the correct answer is B. It is loss of fixed assets over time due to wear and tear.
फिक्स्ड असेट को जब हम यूज करते हैं ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इसका जो वेयर एंड टियर होता है, जो मशीनरी में टूट फूट होती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नोन एज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट्स. Third option, factor income received from abroad minus factor income paid abroad. And fourth, factor income received from abroad. यहाँ पे अपने को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता करना है. फॉरेन से जो इनकम आती है, फैक्टर इनकम आती है, व्हाट विल बी दैट नेट फैक्टर इनकम? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर पेमेंट गाइज. 4 ऑप्शन दिया है. फर्स्ट बोनस, सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, थर्ड कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये सभी ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट कहलाते हैं. गाइस आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम होता क्या है. इट इज अ पेमेंट फॉर विच नो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज्ड. इट इज प्रोवाइडेड टू नीडी विदाउट देयर कंट्रीब्यूशन इन आउटपुट. गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नीडी लोगों को, एंड इसके लिए उनको कुछ वो कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं कंट्री के आउटपुट में. उसके बगैर ही उनको वो मिल जाता है, चाहे वो बोनस हो, उसके बदले में वो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज नहीं कर रहे हैं. अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है गवर्नमेंट विदाउट देयर एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू टोटल आउटपुट और इनकम इन द कंट्री. एम्प्लॉयर को किसी चीज के लिए कंपनसेशन देती है, तो वो भी आपका ट्रांसफर इनकम हो गया. तो यहाँ पे ये चारों ही ऑप्शन ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ. कॉर्पोरेट टैक्स किसका पार्ट नहीं है? पर्सनल इनकम का, नेशनल इनकम का, डोमेस्टिक इनकम का, या फिर प्राइवेट इनकम का? कॉर्पोरेट टैक्स पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं होता है. कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन कंपनीज, यू मस्ट बी नोइंग. सो कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. We'll see the next question. If economic subsidies are added to and indirect taxes are subtracted from the national income at market prices, then it will be equal to. यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यू कैन से. अगर आपने नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. अगर इकोनॉमिक सब्सिडीज को हम ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं नेशनल इनकम के मार्केट प्राइस पे, तो क्या मिलता है हमें? ठीक है, सो विल गेट द नेशनल इनकम, और इसको हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है गाइस. नेशनल इनकम और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट at market price minus indirect tax plus subsidies. जब हम मार्केट प्राइस के नेशनल इनकम में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं एंड सब्सिडीज को ऐड करते हैं, तो देन वी गेट द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दिस इज नोन एज नेशनल इनकम ऑल्सो. यहाँ पे नेट नेशनल इनकम से कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज गिवन ₹1000, सेल्स टैक्स इज गिवन ₹50, एंड सब्सिडी इज गिवन ₹100. देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल बी. यहाँ पे आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है. ये प्रीवियस फॉर्मूला का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको पता है मार्केट
प्राइस फैक्टर कॉस्ट का इनकम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपका इनकम एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और आपको इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमने प्रीवियस फॉर्मूला में देखा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम माइनस करते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, सेल्स टैक्स, दैट इज ₹50, एंड सब्सिडीज को हम उसमें ऐड करते हैं। तो सब्सिडीज क्या दिया हुआ है, ₹100। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू है 1000, उसमें से हम सेल्स टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे 50 एंड सब्सिडीज को ऐड करेंगे, तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा। तो आपका वैल्यू हो जाता है 1050। सो द करेक्ट आंसर इज ए। Follow the previous formula. This formula you can follow and then you can find out the correct answer. Okay, so we'll move to the next question. Question number 12. In which type of economy domestic income is equal to national income? National income, domestic income दोनों सेम होता है। ठीक है, in which type of economy? ऑप्शंस है ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम को ही नेशनल इनकम भी हम बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी को बता रहा है। अदरवाइज नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो उसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कैलकुलेट होता है, बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका नेशनल इनकम का जो वैल्यू है वो डोमेस्टिक इनकम के बराबर ही है। इसका मतलब है कि कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। किस इकोनॉमी में? क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का पार्ट है, कौन सा इसमें है? ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, थर्ड प्रॉफिट एंड फोर्थ स्कॉलरशिप। नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कौन सी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा? ठीक है, ओल्ड एज पेंशन है क्या? नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन क्या होते हैं? ट्रांसफर पेमेंट होते हैं। ये विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन गिवन टू द ओल्ड एज पीपल, तो इसमें नेशनल आउटपुट में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इट इज नॉट कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम। सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट, ये भी आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं हो सकता है। थर्ड प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट इज द फैक्टर इनकम ऑफ व्हाट? प्रॉफिट इज द फैक्टर इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर, सो प्रॉफिट विल बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। फोर्थ देखते हैं स्कॉलरशिप, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट, इट इज गिवन विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम, सो ये भी आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रॉफिट। दिस इज द फैक्टर इनकम। कौन से फैक्टर का इनकम है? प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स? इसमें से कौन सा आप बोल सकते हैं कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कंपनीज में जो होते हैं वो कौन सा यहाँ पे कम है? फर्स्ट इज सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड रिटेन्ड अर्निंग्स एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। यस गाइज, ऑल three are the undistributed profit. These profits are not distributed among the employee of any company. Okay, so this is undistributed profits. Next question, if a farmer sells wheat to miller for ₹500 and miller sells flour to baker for ₹700 and baker sells bread to consumer for 1000, then total value added by miller and baker is? How to calculate this? This is the output method of income calculation. ये दोनों ही हैं जो वैल्यू में ऐड कर रहे हैं मिलर एंड बेकर, दैट इज इक्वल टू 500 rupees. You can see here
टोटल वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर। अभी यहाँ पे देखेंगे हम, मिलर क्या करता है, मिलर सेल्स फ्लोर टू बेकर फॉर ₹700, ठीक है, 500 में खरीदा और 700 में उसने बेकर को सेल किया, तो कितना ऐड किया उसने, ₹200, ठीक है। एंड बेकर सेल्स ब्रेड टू कंज्यूमर, कितने में सेल करता है, 1000 में, 700 में परचेज कर रहा है और 1000 में सेल कर रहा है, तो कितना वैल्यू ऐड कर रहा है वो, 300। तो टोटल कितना हो गया, 200 प्लस 300, इट इज 500 वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर ऑल टुगेदर इन दिस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an economic activity and hence not included while estimating national income in India? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर नहीं किया जाता और जिसकी वजह से वो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। विच वन एक्टिविटी इज नॉट कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा एक्टिविटी दिया हुआ है। फर्स्ट, medical services rendered by a dispensary. Second, a housewife doing household work. Third, a lawyer doing his practice. Fourth, a maid working full time with a family. यहाँ पे कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके बदले में अर्निंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अगर आप देखो, अ हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, अ हाउसवाइफ जो कि घर का काम करती है, उसके बदले में उसको कोई सैलरी या पेमेंट नहीं दिया जाता, ठीक है, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर नहीं किया जाता एंड दैट्स वाई उनका जो काम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता। सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। Last question, guys. National product at current prices is higher than national product at constant prices during a period of. National product at current price, अभी के प्राइस पे जो national product है वो ज़्यादा है as compared to the national product at constant price. ऐसा कभी होता है जब आपका continuous economy में प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बिकम्स हायर देन द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, राइजिंग प्राइसेस, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इज शोन, ठीक है। Hope you have understood national income chapter in a better way. Thank you. Have a nice day.